Hello students, I am Nabila Tariq. We will continue with the chapter in the Kingdom of Fools from your Moments textbook. We will continue from page number 23. Okay. In the previous pages we had learned that this kingdom, which was run by fools, the government was fooled, including the ministers, the king, the councillors, all were idiots and they behaved in a very foolish manner. Now, there was an incident where a burglar entered a rich merchant's house and the wall collapsed on the burglar's head and he died. Now, justice is being given to the burglar. In order to give justice, the king calls many people in the court. He tries to weigh the evidences and finally he comes to a conclusion that the dancing girl is actually the real culprit because she walked many times down the street and which distracted the bricklayer, and in turn the bricklayer made a weak wall. Now, in order to give her explanation, dancing girl says that actually it was not her fault, it was the goldsmith's fault, who was too lazy that he did not make her jewelry on time, and thus she had to walk up a dozen times down the street, up and down the street in order to get her jewelry. So it was not her fault, it was the goldsmith's fault. Now finally the king calls in the goldsmith. जब वो गोल्डस्मिथ को, दैट मीन्स सुनार को बुलाते हैं, तो सुनार अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं. नाउ द गोल्डस्मिथ नेम्ड द मर्चेंट and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle, thought the king, back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead and I am innocent." अब गोल्ड स्मिथ सुनार ये बोलते हैं कि उसकी गलती नहीं है, एक्चुअली वो लेज़ी नहीं था कि वो ज्वेलरी नहीं बना पा रहा था. उस एक रिच मर्चेंट के घर पे शादी थी और उनकी ज्वेलरी बनाने में वो इतना बिज़ी था क्योंकि दैट मर्चेंट वाज वेरी रिच, और जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, उनके अंदर सब्र नहीं होता, वो चाहते हैं कि उनका काम सबसे पहले हो. सो ही वॉज बिज़ी मेकिंग द मर्चेंट्स ज्वेलरी, दैट्स वाई उसने उस डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी बनाने में लेट हो गया, और जिसकी वजह से उस डांसर को बार बार उसकी शॉप पे आना पड़ता था. अब गोल्डस्मिथ ये भी बताता है कि एक्चुअली वो रिच मर्चेंट कौन था. सो वो दैट रिच मर्चेंट वाज एक्चुअली द सेम मर्चेंट जिसके घर की दीवार गिरी थी उस चोर पे. सो ये जो एक्चुअली पूरी स्टोरी है ये एक तरह की साइकिल, एक तरह का सर्कल बन गया. जहाँ से शुरू हुआ था, द स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम द रिच मर्चेंट, कि रिच मर्चेंट के घर पे दिस द थीफ केम and the thief died because the wall had fallen on him. वही रिच मर्चेंट की ही वजह से एक्चुअली पूरे सर्कल में आके घूम के वो रिच मर्चेंट एक्चुअली रियल कल्प्रिट निकला, जिसकी वजह से उस चोर को अपनी जान देनी पड़ी. नाउ द किंग समन्ड बैक टू द कोर्ट द रिच मर्चेंट. किंग ने उस रिच मर्चेंट को फिर से कोर्ट में बुलाया. समन्ड मीन्स पूछताछ करने के लिए, और उससे ये बोला दैट कि तुम्हारी गलती है, यू शुड बी पनिश टू डेथ. नाउ रिच मर्चेंट रोते हुए ये बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, बिकॉज आई हैड नॉट ऑर्डर्ड द ज्वेलरी. ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर मैंने नहीं दिया था. ये ऑर्डर किसने दिया था? रिच मर्चेंट, इसके फादर ने, एंड हु इज़ ऑलरेडी डेड. सो ही सेज, ही प्लीड्स गिल्टी एंड ही सेज दैट आई एम innocent and the order was given by my father and my father is dead. Now but the king consulted his minister and ruled decisively. It's true your father is the true murderer, he is dead, but somebody must be punished in his place. You've inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of the horrible crime. You must die. Now students, underline this full paragraph. But the king consulted his ministers, still you must die. You should underline this paragraph because this is important. Now जो राजा था वो बहुत समझदारी के साथ
और एक क्विक डिसीजन लेने के लिए वो अपने मिनिस्टर्स से बात करता है एंड ही वांटेड टू गिव अ वेरी डिसिसिव रिज़ल्ट. डिसिसिव रिज़ल्ट मीन्स एक बहुत अच्छे डिसीजन के साथ वो रिज़ल्ट देना चाहता था कि एक्चुअली किसको पनिशमेंट दें. जब फादर जो एक्चुअल कल्प्रिट थे वो मर चुके थे, ये उनका बेटा था रिच मर्चेंट, सो इसकी गलती नहीं थी, फादर की गलती थी एंड फादर इज़ डेड. नाउ पनिशमेंट इज़ टू बी गिवन, पनिशमेंट तो देना ही है, तो किसको पनिशमेंट दें. सो दे डिस्कस, द मिनिस्टर्स एंड द किंग एंड ऑल, दे स्टार्ट डिस्कसिंग एंड नाउ दे कम टू अ वेरी वाइज कंक्लूजन. मतलब किंग के हिसाब से वो एक बहुत समझदारी का कंक्लूजन देता है और रिज़ल्ट ये देता है कि दैट इज़ ट्रू कि उनके फादर रियल मर्डरर हैं और वो मर चुके हैं, लेकिन क्योंकि उनके मरने के बाद उनकी जितनी भी लग्जरीज थी, रिचेस थी, पैसा था, प्रॉपर्टी थी, ज्वेलरी थी, ऑल दिस वॉज इनहेरिटेड बाय द रिच मर्चेंट. मतलब ये सारी चीज़ें किसको मिली, उनके बेटे को, जो कि अभी करेंटली प्रेजेंटली जो मर्चेंट है उसको मिली. तो जब उसको विरासत में सारी लग्जरी और रिचेस मिली, सो जितने भी पाप और सिंस करे थे उनके फादर ने, वो उसके भी जिम्मेदार कौन होगा, उनका बेटा, दैट इज़ द रिच मर्चेंट. सो ही सेज दैट व्हेन यू हैव इनहेरिटेड all the luxuries from your father, you have to get punished for your father's sins also. मतलब तुमको ही पनिशमेंट मिलेगी अपने फादर के गुनाहों की. और बहुत एक तरह से एटीट्यूड और ओवर एक्टिंग, ओवर वाइस बन के किंग ये बताता है कि जब सबसे पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, मतलब रिच मर्चेंट से कहता है कि जब सबसे पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि तुम ही एक्चुअली रियल कल्प्रिट हो. यू आर द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम. मतलब तुम ही वो जड़ हो जिसकी वजह से ये क्राइम हुआ है. क्राइम क्या था, द डेथ ऑफ द थीफ बिकॉज ऑफ दैट वॉल दैट कोलैप्स्ड ऑन हिम. सो this king was actually a very big idiot. He was foolish, he was dumb, but still वो अपने तरफ से पूरी एक्टिंग करता था सबसे ज़्यादा समझदार बनने की, और उसे ये इल्यूजन था एक्चुअली कि वो बहुत ज़्यादा समझदार है, but at the same time he was very foolish. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. Now, अब उनको पनिश करना था किसको, रिच मर्चेंट को, और पनिशमेंट क्या था, डेथ. उसके लिए उन्होंने एक नया औजार बनाया, एक हथियार बनाया, दैट इज़ कॉल्ड स्टेक. और उस स्टेक को शार्पन किया. शार्पन मतलब उसके एजेस को बहुत ज़्यादा पैना किया, शार्पन किया, जिससे प्रॉपरली क्रिमिनल की बॉडी के अंदर वो जो औजार है, जो हथियार है, वो उसकी बॉडी के अंदर अच्छे से चला जाए और वो मर जाए. बट देन अ प्रॉब्लम अकर्ड. किंग के मिनिस्टर्स ने किंग को ये बताया दैट द रिच मर्चेंट इज़ वेरी थिन, और जो उनका हथियार है वो प्रॉपरली फिट नहीं होगा उसकी बॉडी में. एक्चुअली जो वो इतना दुबला है कि जो हथियार है वो अच्छे से काम नहीं करेगा उसकी बॉडी पे, अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा. एग्जीक्यूट मीन्स कैरिंग ऑन अ प्रोसीजर, मतलब किसी प्रोसीजर को कैरी ऑन करना. तो वो प्रॉपरली वो प्रोसीजर कैरी ऑन नहीं हो पाएगा और ढंग से वो रिच मर्चेंट मर नहीं पाएगा बिकॉज ही इज़ टू थिन. इसलिए हमको एक फैट मैन चाहिए, एक मोटा आदमी चाहिए जो उस स्टेक पे, उस हथियार पे फिट हो सके, बिकॉज पनिशमेंट तो देनी है और न्यू स्टेक, ब्रांड न्यू स्टेक बनाया है उन्होंने, वो हथियार बनाया है, तो हथियार का भी यूज़ होना है और पनिशमेंट भी देनी है. तो मिनिस्टर को नहीं तो किसी और को पनिशमेंट दे देंगे. एंड ही थिंक्स एंड दे सजेस्ट हिम दैट दे शुड कॉल अ वेरी फैट मैन एंड दे शुड एग्जीक्यूट द स्टेक ऑन हिम, और उसको मार दो, मतलब पनिशमेंट किसी और को दे दो, बिकॉज द रिच मर्चेंट इज़ वेरी थिन. ना इमेजिन कितने ज़्यादा बेवकूफ़ थे वो लोग, कितने ज़्यादा सिली थे. What shall we do? He said, when suddenly it struck him that they all needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. Now उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको एक बहुत मोटा आदमी चाहिए जो स्टेक में फिट हो जाए. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and the eyes fell on the disciple who had fattened himself for 3 months on bananas, rice, wheat and ghee.
ना वो पूरे किंगडम में जाते हैं एक फैट मैन ढूंढने के लिए, और उनको कौन सा मोटा आदमी मिलता है? वो सेम डिसाइपल जो गुरु के साथ इस सिटी में आया था और इसी सिटी में रह गया था बिकॉज ही वॉज टू ग्रीडी बिकॉज ऑफ द फूड। उसे खाना था, ही वॉन्टेड टू ईट एंड अ लॉट ऑफ बनानाज, राइस, वीट, घी, बिकॉज एवरीथिंग वॉज सो चीप। सो वो अपनी टेम्पटेशन की वजह से उसी जगह पर रह गया था और बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। नाउ हियर स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर द गुरुज वर्ड्स। यहाँ पे हमको गुरु के वर्ड्स याद आते हैं कि गुरु ने अपने डिसाइपल को क्या समझाया था कि ये जो किंगडम है, ये सिटी है, दिस इज़ फिल्ड विथ फुलिश पीपल, और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं उनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो कल हमारे साथ क्या कर दें। हमारी गलती नहीं होगी तो भी हमको वो किसी गलती में फंसा देंगे। सो इट इज़ बेटर कि यहाँ से चलो। बट द डिसाइपल वॉज टू ग्रीडी एंड दैट्स वाई ही स्टेड बैक, और वही हुआ कि उसको फंसा दिया उन लोगों ने।